Good morning, student. Welcome you all. So today we will discuss the part third of the chapter number third. That is the little girl from the book Behind. So we already have done the first part of this chapter, and the first part on the previous part we will discuss about the little girl, and the little girl name is Kezia. Okay, and the girl Kezia, she is much afraid of her father, and she doesn't like him. All right. And one day she was suffering from cold, and she is at home only. Okay. And her grandmother advised her, why don't you make a pin cushion for your father's birthday, which is on next week, right? Which is coming on next week. So, and for this, her grandmother gave her a beautiful yellow silk uh, cloth to make a pin cushion for her father's birthday. All right. So let's discuss and let's continue the chapter. Fifth paragraph, or you can say the fifth point, laboriously with a double cotton, the little girl stitched three sides. So here the word laboriously means with a lot of effort or difficulty. बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत के बाद, डिफिकल्टी के बाद क्या किया लिटिल गर्ल ने, एक कॉटन पीस ऑफ क्लोथ होता है, ठीक है, अब वैसे आपने कुशन बनाया, ये कुशन है आपका, ठीक है। अब इस कुशन पे उसने क्या किया, जो लिटिल गर्ल थी उसने थ्री साइड से तो इस कुशन को स्टिच कर दिया, मीन्स ये थ्री साइड से कुशन को ऐसे स्टिच कर दिया। तो हेयर द वर्ड डबल कॉटन, सो हेयर द वर्ड डबल कॉटन मीन्स होता है जब हम डबल थ्रेड को यूज करके स्टिच करते हैं। तो थ्री साइड से यहाँ से उन्होंने स्टिच कर दिया था लिटिल गर्ल ने, बट द लिटिल गर्ल स्टिच द थ्री साइड, बट व्हाट टू फिल इट विद, दैट वाज अ क्वेश्चन। एंड व्हाट वाज द क्वेश्चन कि इसके अंदर फिल क्या करें, राइट। क्वेश्चन कवर कर लिया उसने, थ्री साइड स्टिच कर लिए, लास्ट साइड जब स्टिच करेगी तब उसके अंदर कुछ फिल करेगी। तो दैट वाज अ वेरी मेजर क्वेश्चन कि व्हाट वाज फिल inside the cushion, inside the cloth. The grandmother was out in the garden and she wandered into his mother bedroom to look for scratch. So वो अपने gradually अपने grandmother बाहर garden में घूम रही थी, and she wandered into mother's room. और wandered means went into by chance. So by chance she entered into her mother's room, and she looking up there some scraps. So scraps means क्या होते हैं, small pieces of cloth or paper etc that are not needed, means जो unused चीजें होती हैं उसे हम scrap कहते हैं, जो papers हो या cloth हो, whatever we have. So on the back table she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into tiny pieces and stuffed her case, then sewed with the fourth side. So what she did, she found some fine papers on the back table, और उसने क्या किया, she tore all the papers and she filled into the cushion and she sewed up with the fourth side. Okay, last the fourth side, अपने उसने fourth side भी उसने सिल दी, ठीक है, फोर साइड सिल दी उसने पेपर भर दी। That night there was a hue and cry in the house. So hue and cry means angry protest, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ, चिल्लाना स्टार्ट हुआ, कहाँ पे, उसके घर पर। किसके घर पर, केजिया के। Father great speech for the port authority had been lost because father के कुछ ऑफिशियल पेपर्स थे वो क्या हो गए थे, लॉस हो चुके थे, खो चुके थे। इट वॉज दैट्स वाई वो बहुत डिस्टर्ब थे। Rooms were searched, servant questioned. Finally, mother came into Kezia's room. So, सबसे क्वेश्चन पूछे गए, सारे रूम सर्च किए गए, सर्वेंट से क्वेश्चन किया गया। फाइनली मदर किसके रूम में आई, केजिया के रूम में आती हैं। केजिया, I suppose you didn't see some papers on a table in our room. So she said to her daughter कि केजिया, मैं सोचती हूँ कि तुमने कोई पेपर्स हमारे रूम में नहीं देखे होंगे। Oh yes, she said, I tore them up for my surprise. So she said कि मैंने उनको फाड़ दिया for my surprise. मैंने अपने फादर को वो सरप्राइज देना चाहती थी ना फॉर उनके बर्थडे पर, तो उन्होंने वो क्या किया, वो टॉर कर दिए, फाड़ दिए। What screamed mother? Then her mother screamed at her, scolded at her, come straight down to the dining room the step. क्विकली उसको कहाँ लेके गई, डाइनिंग रूम पे लेके गई। तुम कहाँ पे आ जाओ, डाइनिंग रूम पे आ जाओ सीधे, गुस्से में।
यूजुअली होता है ना, हमारे पेरेंट्स जब हम कुछ कर देते हैं तो दे वर कॉल्ड, हमें स्कॉल्ड करते हैं, तो सेम केजिया की मदर ने भी उसे बहुत डांटा। एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो मतलब बहुत डिस्टर्ब हो गए थे इसके फादर। तो उसको ड्रैग कर, मतलब घसीट के, जब बच्चे छोटे होते जाते थे तो घसीट के लेके जाना पड़ता, तो सेम वे में ड्रैग किया उसकी मदर ने केजिया को, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक वेल ही सेड शार्पली, और फादर उसके ऐसे हाथ पीछे करके बैठे थे, एंड he said sharply in very sharp manner, he said, mother exclaimed, he stood and stared at the child, वो बहुत घूर रहे थे किसको, केजिया को। Did you do that? And he said to her, did you do that? कि तुमने वैसा किया? No, she whispered. As usual, वो वापस अपने फादर के सामने स्टैमर करने लगी, विस्पर धीरे से बोलती, no, mother, go up to her room and fetch down the damn things. See that the child put to bed this instant. So here, though, क्या होता है, damn thing used to express anger at something, किसी पे गुस्सा दिखाना, तो उसकी मदर भी उसे बहुत तेज गुस्सा दिखाती है और अपने रूम में बोले, लेकर आओ जो तुमने किया ना उसको दिखाओ। Crying too much to explain, she lay in the shadow room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. So पैटर्न जो फ्लोर पे बने हुए होते हैं, वो चुपचाप से अपने रूम में जाती है, रोती रहती है, इवनिंग लाइट की शेडो देखती रहती है और फ्लोर पर वॉच करती थी। देन फादर केम इनटू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड। when her father came into the room and उनके हाथ पे क्या था, रूलर, एक डंडा था, स्टिक थी। I am going to beat you for this, he said. तो उन्होंने क्या कहा कि I am going to beat you, मैं तुम्हें क्या मारने जा रहा हूँ, मारने जा रहा हूँ। So actually he wanted to teach Kezia a life lesson, okay, but उन्हें ऐसा करना नहीं चाहिए। he chose a wrong way because he chose a beating way, उसको वो मारने जा रहे थे, राइट। सो वो गलत था, बट स्टिल उन्होंने ऐसा किया। ओ नो, शी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स, वो चिल्लाती है और खुद को किसे, जो बेड होता है उस पर हमारे कॉइल्स वगैरह या बेडशीट होती है उससे ही खुद को कवर कर लेती है और स्क्रीम करती। ही पुल्ड देम असाइड, और उसके अंदर, एंड हिज फादर पुल्ड देम असाइड, जो भी उसने बेडशीट वगैरह कवर किया होता है उसको असाइड करते हैं। सिट अप, ही ऑर्डर्ड, एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, एंड ही सेड कि चुपचाप से बैठ जाओ और अपने हाथ ऐसे बाहर निकालो। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग to you. So he said कि you have to know that do not touch those things that doesn't belong to you. तुम्हें वो चीज़ें नहीं छूनी चाहिए जो तुमसे बिलोंग नहीं करती, जिससे तुमसे कोई ताल्लुक नहीं होता। But it was your birthday. Then she said कि father, it was a surprise for you and it was your birthday. वो जैसे ही बोलने वाली थी, down came the ruler on her लिटिल पिंक पाम। जैसे ही उसके पिंक पाम पे, मतलब छोटी बच्ची थी, पिंक से उसके पाम से हथेलियाँ थी, फिर जोर से स्टिक उसको पड़ता है। Hour later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. So, clung means to attach yourself to something. Okay, so here when grandmother wrapped her in a shawl, उसको cover कर लेती है with the shawl. And rock, and इसको कहाँ लेके जाती है, rocking chair. Rocking chair means like a moving chair. The child clung to her soft body. When the child afraid of something, so she clung to the soft body. Soft body means grandmother body. वो clutch कर लेती है, उनको पकड़ लेती है, attach कर लेती है। What did God make fathers for? She sobbed. So मतलब जोर जोर से रोना, तो bitterly cry करती है और बोलती है कि God fathers को क्यों बनाते हैं, क्योंकि उसके लिए father वो बिल्कुल अच्छे नहीं थे, क्योंकि उन्होंने इसको beat किया था। Here's a clean hanky, darling. वो हैंकी ऑफर करते उसके ग्रैंडमदर, बोलते इससे पॉश लो, blow your nose, go to sleep, Pat, you will forget all about it in the morning. And she said, means her grandmother said, see, darling, this is the hanky, just blow your nose, wipe your tears and go for sleep. कहाँ चले जाओ, go to sleep चले जाओ, and in the next morning you will forget about all these things. But I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. She said कि मैं पापा को समझाने की कोशिश कर रही थी, but he was too upset. वो बहुत upset थे. He don't want to listen anything. All right. But the child never forget. Next time she saw him, she quickly put both hands
behind her back and a red color flew into her cheeks. तो जैसे जब भी बच्ची वो भूली नहीं, जब भी वो अपने फादर को देखती है अपने हाथ पीछे कर लेती है एंड और उसके जो गाल है वो क्या हो जाते हैं, रेड हो जाते हैं, क्योंकि वो डर जाती है। वो डर इसलिए जाती है क्योंकि उसके फादर ने उसको बीट किया था। इसलिए हम कहते हैं कि बच्चों को कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए, क्योंकि मारना इट्स समथिंग लाइक कि वो बच्चा उस चीज़ को कैसे कनेक्ट करेगा। यू बिकॉज केजिया डिडंट डूइंग इट इंटेंटली ना, तो वो सोचिए मैंने तो ये किया नहीं, उसके साइड से तो ये सब चीज़ें बहुत क्या थी, सरप्राइजिंगली थी, उसको बीट किया गया, उसको ऐसा नहीं करना था, तो ये सब चीज़ें उसको पसंद नहीं आई, राइट। और उसको लगा कि उसके फादर अच्छे नहीं हैं और उसको वो मारते हैं और फिर उसके दिमाग में वो चीज़ें फिट हो गई हैं। ओके, सो वी विल कंटिन्यू इट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ। थैंक यू।